کرکٹ اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل کے 10 سال، دنیا کو دھوکہ دینے والی 3 نو بالز جو بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں۔ ناظرین، 26 اگست 2010 کو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا چوتھا اور آخری ٹیسٹ لارڈز میں شروع ہوا۔ کپتان سلمان بٹ نے ٹاس جیت کر انگلینڈ کو بیٹنگ کی دعوت دی، لیکن خراب موسم کی وجہ سے صرف 12 اوورز کا کھیل ہی ہو پاتا ہے۔ محمد عامر انگلینڈ کی اننگز کا تیسرا اوور کرانے آئے تو ان کے سامنے الیسٹر کک بیٹنگ کر رہے تھے۔ اوور کی پہلی گیند پر محمد عامر کا پیر لائن کو کراس کرتا ہے، جس پر امپائر بلی باؤڈن نو بال کا اشارہ کر دیتے ہیں۔ اننگز کا دوسرا اوور محمد آصف کراتے ہیں، ان کے سامنے کپتان اینڈریو اسٹراؤس ہیں۔ اس اوور کی چھٹی گیند پر امپائر ٹونی ہل کی جانب سے نو بال کا اشارہ ہوتا ہے۔ 27 اگست 2010 کو چوتھے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن انگلینڈ کی بیٹنگ لائن محمد عامر کی بولنگ کے سامنے مشکلات کا شکار نظر آتی ہے۔ عامر صرف 13 گیندوں پر بغیر کوئی رنز دیے 4 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی دوران وہ ٹیسٹ کرکٹ میں 50 وکٹیں مکمل کرنے والے دنیا کے سب سے کم عمر بولر کا اعزاز بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ محمد عامر اپنی بولنگ کے اس شاندار مظاہرے کے دوران اس دن کے اپنے تیسرے اوور کی تیسری گیند جوناتھن ٹراٹ کو شارٹ پچڈ کرتے ہیں، لیکن امپائر بلی باؤڈن کو اسے نو بال دینے میں کوئی دشواری اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ عامر کا پاؤں کریز سے کافی آگے چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سکائی ٹی وی پر کمنٹری کرنے والے مائیکل ہولڈنگ اور این اے بوتھم بھی حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ بوتھم کی آواز سنائی دیتی ہے، یہ نیٹ میں کی جانے والی بولنگ معلوم ہو رہی ہے، طوفان آنا ابھی باقی ہے۔ ناظرین، 2 دن کے کھیل میں یہ 3 نو بالز بظاہر کھیل میں معمول کا حصہ معلوم ہو رہی تھی، لیکن کسے خبر تھی کہ ان 3 نو بالز کے تانے بانے پہلے سے بنے جا چکے تھے۔ 28 اگست 2010 کو لارڈز گراؤنڈ میں پویلین کی بالکونی میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے مینیجر یاور سعید کے ہاتھوں میں اخبار نیوز آف ورلڈ کا شمارہ تھا اور ان کی نظریں اس خبر پر جمی ہوئی تھی جن کا تعلق انہی 3 نو بالز سے تھا جو ان کے فاسٹ بولرز محمد عامر اور محمد آصف کرا چکے تھے۔ اس خبر میں چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ ان بالرز نے یہ 3 نو بالز پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت کروائی تھی۔ نیوز آف دا ورلڈ کی خبر میں بتایا گیا تھا کہ یہ منصوبہ 25 اگست 2010 کو لندن کے ایک ہوٹل کے کمرے میں طے پایا تھا جب پاکستانی کرکٹرز کے ایجنٹ کے طور پر دنیا کے سامنے رہنے والے مظہر مجید نے ایک انڈر کور صحافی مظہر محمود سے ملاقات کی۔ اس صحافی نے خود کو میچ فکسر ظاہر کیا، لیکن دراصل یہ ایک سٹنگ آپریشن تھا جس میں اس کی مظہر مجید کے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو ریکارڈ ہو رہی تھی۔ اس ویڈیو میں میز پر سجے 1.5 لاکھ نشان زدہ برطانوی پاؤنڈ کے سامنے بیٹھے مظہر مجید کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ محمد عامر اور محمد آصف میرے بتائے ہوئے منصوبے کے مطابق کب نو بال کریں گے۔ مظہر مجید نے جن گیندوں کی نشاندہی کی تھی محمد عامر اور محمد آصف نے انہی گیندوں پر نو بالز کی تھی۔ لارڈز ٹیسٹ کے تیسرے دن کے اختتام کے بعد لندن پولیس نے پاکستانی ٹیم کے ہوٹل پر چھاپا مارا۔ اس دوران محمد عامر کے کمرے سے 1500 پاؤنڈ اور کپتان سلمان بٹ کے کمرے سے 2500 پاؤنڈ کے نشان زدہ نوٹ برآمد ہوئے۔ ہیڈ کوچ وقار یونس نو بال پر حیران۔ ناظرین، اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل کے وقت وقار یونس پاکستانی ٹیم کے ہیڈ کوچ تھے۔ وقار یونس نے BBC اردو کو دیے گئے انٹرویو میں بتایا تھا کہ جب انہوں نے ڈریسنگ روم میں محمد عامر کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ تم نے اتنی بڑی نو بال کیسے کی، تو اس سے پہلے کہ عامر جواب دیتے کپتان سلمان بٹ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے عامر کو ہدایت کی تھی کہ آگے نکل کر باؤنسر کرو کیونکہ بیٹسمین فرنٹ فٹ پر کھیل رہا تھا۔ وقار یونس کا کہنا تھا کہ جب کپتان نے یہ بات کہہ دی تو کوچ کی حیثیت سے ان کے پاس کپتان کی بات ماننے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا، لیکن انہوں نے اپنی اس حیرانی کا اظہار ICC اینٹی کرپشن یونٹ کے سامنے بیان میں ضرور کیا تھا۔ وقار یونس نے اپنے اس انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ جب یہ اسکینڈل سامنے آیا تو وہ دن جس طرح گزرے وہ بیان سے باہر ہیں۔
पुलिस तीनों क्रिकेटर्स को हिरासत में लेना चाहती थी। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के मौके पर लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर वाजिद शमसुल हसन थे। 10 साल गुजर जाने के बावजूद वो इस वाक़े की तलखी को आज भी महसूस करते हैं। बीबीसी से बात करते हुए वाजिद शमसुल हसन ने बताया कि उस वाक़े ने मुल्क और ख़ास करके बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानियों पर मनफी असरात मुरतब किए थे और पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन सख्त ज़हनी दबाव का शिकार हो गए थे। उन्होंने बताया कि हाई कमिश्नर की हैसियत से उन्हें भी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा था, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एजाज भट्ट लंदन में होते हुए भी मंजरनामे से गायब हो चुके थे और उन्हें खुद भी मीडिया का सामना करना पड़ा था। उन्होंने बताया कि उस वक्त उनके साथ सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानूनी मुशीर तफज़्ज़ुल हैदर रिजवी मौजूद थे। वाजिद शमसुल हसन का कहना है कि उन्हें आज भी याद है कि जब पुलिस ने टीम होटल पर छापा मारा तो इत्तला मिलते ही वो वहां पहुंच गए थे और वहां मौजूद चीफ पुलिस सुप्रिटेंडेंट क्रेसिडा डक से उनका सख्त जुमलों का तबादला हुआ था। वो कहते हैं कि पुलिस तीनों क्रिकेटर्स को हिरासत में लेना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक उन क्रिकेटर्स के खिलाफ शवाहिद न हो वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक इल्ज़ामात साबित नहीं हो जाते उन क्रिकेटर से मुजरिमों जैसा सलूक नहीं किया जा सकता। पुलिस चीफ ने क्रिकेटर्स को हिरासत में न लेने की बात मान ली थी, लेकिन वो उनके पासपोर्ट्स अपनी तहवील में लेना चाहती थी। ताहम उनके कहने पर वो ये पासपोर्ट्स पाकिस्तानी हाई कमीशन के पास रखने पर राज़ी हो गए थे। वाजिद शमसुल हसन का कहना है कि बरतानिया में रहते हुए वहाँ के कवानीन के मुताबिक उनका ये मौक़िफ़ बिल्कुल बजा था कि इल्ज़ामात साबित होने तक ये क्रिकेटर्स बेगुनाह हैं, और उसे नुक्ते की बुनियाद पर उन्होंने उन क्रिकेटर्स का उस वक्त दिफा किया था। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया था कि अगर उन क्रिकेटर्स पर इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं तो वो खुद अपनी हुकूमत से कहेंगे कि उन क्रिकेटर्स को सख्त तरीन सज़ाएँ दी जाएँ। वो कहते हैं कि ये तासुर दुरुस्त नहीं कि उन्होंने उस वक्त जो बयानात या इंटरव्यू दिए थे वो जज्बाती नोयत के थे। वाजिद शमसुल हसन का कहना है कि उन्होंने इस मामले में इंडियन साजिश का नुक्ता सिर्फ इसी सूरत में उठाया था जब आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव हारून लोगार्ड ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में उनसे मुलाकात के दौरान आईसीसी के सदर शरद पवार से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि उन दोनों की गुफ्तगू उन्हें पाकिस्तान को बदनाम करने से मुतल्लिक मालूम हुई थी। हारून लोगार्ड का झुकाव भी यही बता रहा था। हारून लोगार्ड ने उन्हें किसी किस्म का कोई सबूत फराहम नहीं किया था, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था। तीनों क्रिकेटर झूठ बोल रहे थे। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन एजाज भट्ट ने बीबीसी उर्दू को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में इस बात पर दुख का इजहार किया था कि सलमान बट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में आईसीसी की जानिब से सज़ाएं मिलने के बावजूद मज़हर मजीद से दूर नहीं हुए और उससे राब्ते में रहे। तीनों क्रिकेटर्स मुसलसल झूठ बोलकर हकीकत छुपाते रहे थे। एजाज भट्ट जब आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट और स्कॉटलैंड यार्ड के हुकाम से दुबई में मिले थे तो उन्होंने एजाज भट्ट को बताया था कि आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट की जानिब से सज़ाएं मिलने के बाद भी ये तीनों क्रिकेटर्स मज़हर मजीद से राब्ते में रहे हैं। उन हुकाम ने एजाज भट्ट को जो तफसीलात फराहम की थी उनके मुताबिक पाबंदी की सज़ा के बाद भी सलमान भट्ट ने मज़हर मजीद से फ़ोन कॉल्स और मैसेंजर की शक्ल में 140 मरतबा रब्ता किया, जबकि मोहम्मद आमिर ने तकरीबन 100 मरतबा और मोहम्मद आसिफ ने तकरीबन 40 मरतबा मज़हर मजीद से रब्ता किया। ये तमाम रिकॉर्ड आईसीसी और स्कॉटलैंड यार्ड के पास मौजूद था। क्रिकेटर्स को जेल जाना पड़ा। नाज़रीन, सलमान भट्ट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर को आईसीसी के एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल के साथ साथ लंदन की अदालत का सामना भी करना पड़ा। आईसीसी के एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल ने सलमान भट्ट पर 10 साल की पाबंदी आयद कर दी, जिनमें 5 साल मुअत्तली के थे। मोहम्मद आसिफ पर 7 साल की पाबंदी आयद की गई, जिनमें 2 साल मुअत्तली के थे, जबकि मोहम्मद आमिर को 5 साल पाबंदी का सामना करना पड़ा।
मोहम्मद आसिफ और सलमान बट ने आईसीसी की जानिब से आयद करदा पाबंदियों के फैसले के खिलाफ खेलों की आलमी सालिसी अदालत में अपील दायर की थी, जो मुस्तरद कर दी गई। लंदन की अदालत ने तीनों क्रिकेटर्स और मजहर मजीद को मुजरिम करार देते हुए सज़ाएं दी, जिनके मुताबिक सलमान बट को 2.5 साल, मोहम्मद आसिफ को 1 साल और मोहम्मद आमिर को 6 माह कैद की सज़ा सुनाई गई। मजहर मजीद को दी गई सज़ा 2 साल 8 माह कैद थी। नाजरीन, स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल ने सबसे ज़्यादा नुकसान 18 साल मोहम्मद आमिर को पहुंचा, जो इस सीज़न में शानदार बॉलिंग करते आ रहे थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हेडिंगले टेस्ट के दोनों इनिंग्स में 7 विकेटें हासिल की थी। इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 5 बैट्समैनों को आउट किया और फिर मुतनाज़ा 9 बॉल वाले लॉर्ड्स टेस्ट के पहली इनिंग में उन्होंने 6 विकेटें हासिल की थी। वो अपनी शानदार बॉलिंग की वजह से मैन ऑफ द सीरीज़ करार पाए थे, लेकिन शायकीन के शदीद रद्द अमल से बचने के लिए इनामात देने की तकरीब ग्राउंड के बजाय हाल में रखी गई थी। इस तमाम सूरत हाल का सबसे अहम पहलू यह है कि मोहम्मद आमिर ने इस सीज़न की 6 टेस्ट मैचों में 30 विकेटें हासिल की थी, लेकिन स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस होने की वजह से वो विजडन के साल के 5 बेहतरीन क्रिकेटर्स में शामिल नहीं किए गए थे और इस साल विजडन ने 5 के बजाय 4 क्रिकेटर्स के नामों का ऐलान किया था। विजडन के एडिटर शील्ड बेरी ने लिखा था कि इस फहरिस्त में शामिल 5वां नाम पाकिस्तानी क्रिकेटर का था, लेकिन मुबैना स्पॉट फिक्सिंग की वजह से उनका नाम शामिल नहीं किया गया। अगर वो इस मामले में बेगुनाह पाए गए तो उनके नाम को शामिल करने के बारे में गौर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाज़रीन, शाहिद आफरीदी इंग्लैंड के इस दौरे में पाकिस्तानी टीम के कप्तान थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। शाहिद आफरीदी ने BBC उर्दू से बात करते हुए कहते हैं कि वो वनडे सीरीज़ खेलने के लिए इंग्लैंड रवाना हो रहे थे कि एयरपोर्ट पर उन्हें इस वाक़े का पता चला। वो कहते हैं कि वो बहुत मुश्किल दिन थे जब इंग्लैंड में हर कोई पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शक की नज़र से देख रहा था। इंग्लिश मीडिया ने तूफ़ान बर्पा कर रखा था। तीनों क्रिकेटर्स की बदनामी तो हुई थी, लेकिन मुल्क और कौम के लिए भी ये बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। शाहिद आफरीदी ने अपनी किताब गेम चेंजर में तीनों क्रिकेटर्स के मजहर मजीद के साथ करीबी ताल्लुकात और उनके आपस में कॉल्स और पैगामात के तबादले का तफसील से जिक्र किया है। शाहिद आफरीदी ने इसी सूरत हाल के पेश नज़र टेस्ट क्रिकेट से अचानक रिटायरमेंट का फैसला किया था। साबिक कप्तान रमीज़ राजा लॉर्ड्स टेस्ट में कमेंट्री कर रहे थे और इब्तिदा में उन्हें भी ये एक बेज़रर सी नो बॉल मालूम हुई थी, लेकिन जब उन्हें BBC के कमेंटर्स ने बताया कि न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड इस सिलसिले में एक स्कैंडल सामने लाने वाला है तो उन्हें उसकी हकीकत का पता चला। रमीज़ राजा कहते हैं कि इस वाक़े से नाक कट गई, बदनामी हुई और लोगों के रवैये तब्दील हो गए। पहले जब ग्राउंड में दाखिल होते थे तो हेलो गुड मॉर्निंग कहा जाता था, लेकिन फिर लोग मुंह फेरना शुरू हो गए। रमीज़ राजा कहते हैं कि इस वाक़े से सबक नहीं सीखा गया, जिसका उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि बार बार ऐसे चेहरे सामने आते हैं और हम उनको अपने सिस्टम में दोबारा शामिल करने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि ये मुआशरे और शायकीन की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को वापस न आने दिया जाए, चाहे कितना ही बड़ा टैलेंट क्यों न हो। ये शायकीन और सिस्टम की नाकामी है कि मुल्क को बदनाम करने वाले क्रिकेटर्स वापस आ जाते हैं। दुनिया में कहीं और ऐसा नहीं होता। मोहम्मद आमिर 5 साल की पाबंदी के बाद दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गए, लेकिन सलमान बट और मोहम्मद आसिफ पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के बावजूद इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे न खुल सके। मोहम्मद आमिर के मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खासा मुतहरिक रहा था कि पाबंदी की मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की इजाज़त मिल सके। इस सिलसिले में ICC से दरख्वास्त भी की थी, ताहम ये उसी वक्त मुमकिन हो सका जब ICC के एंटी करप्शन कवायद व ज़वाबित में तरमीम अमल में आई, जिसके तहत पाबंदी का सामना करने वाले क्रिकेटर्स पाबंदी की मुद्दत ख़त्म होने से कबल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वापस आ सकते हैं। मोहम्मद आमिर की वापसी पर कुछ क्रिकेटर्स को तहफ़्फ़ुज़ात भी
تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی قومی تربیتی کیمپ میں واپسی پر اس وقت کے ون ڈے کپتان اظہر علی اور محمد حفیظ نے کیمپ کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ تاہم کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان سے بات چیت کے بعد وہ کیمپ میں آنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ناظرین، اس طرح کی مزید نیوز اپڈیٹ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔